Students, here you see the concept is midpoint velocity. That means moving with uniform acceleration. Students, you know equation of motion is applicable to the body is moving with uniform acceleration. Yes or no? What are the equations of motion? V is equal to u plus at, correct? S is equal to ut Yes, sir. half at square. X square. V square minus u square is V equal square to minus U 2s. square. There is another equation, distance traveled in n second, that is Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. So student, here you see moving with uniform acceleration, a body crosses a point x with a velocity u. That means that एक body इस तरफ जा रहा है, ये point x है, और उसने जब यहाँ पर क्रॉस किया बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी था u, ठीक है, एंड ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है और ये जाके और एक पॉइंट पे पहुंच गया y, ठीक है, उसने जाके और एक पॉइंट y पे पहुंचा और उसका वेलोसिटी वहां पर हो गया v. Then it crosses the midpoint. Students, ये midpoint ले लो xy का. This is the midpoint. Let the velocity is asking. Then it will cross the midpoint x and y with a velocity. At what velocity it will cross? Let student, this velocity is v. Vi, let this velocity, okay. V1, let the velocity is v1. And students, you know, body is moving with constant acceleration, yes or no? And at this is midpoint, let this two distance is s. Let this distance is also s. So student, if I'll apply v square minus u square is equal to 2as in the first part from x to midpoint m, x to m, then what I will write? V1 square minus u square is equal to 2as, correct? I can write like this for the first half. Yes, sir. U to m. Then here, what will be the value of acceleration? That is going to be how much? V1 square minus u square by 2a, correct? Here from m to y, if I will be going from m to y, then it will be v square minus v1 square is Sir, equal v to square, v1 square minus There shall be 2s. final velocity v square minus u square is equal to 2as. So v1 square minus u square is equal to 2as. So a will be how much? V1 square minus u square by 2a, correct? So 2s is 2s. Yes. And here v square minus v1 square is equal to 2as. So again, if I'll find a, which is constant for both the case, that is v square minus v1 square by 2s. Both accelerations are constant, so let's compare both the equations. Then you can see v1 square minus u square is equal by 2s is equal to v square minus v1 square by 2s, correct? So by solving this, 2s cancel. By taking v1 to one side, we can find v1 is equal to v square plus u square by 2. So this is the step, but in exam, if you'll be going for individual solving, then it may take time. But if you directly know the u and v, then directly you can find the midpoint velocity, v1. All understood? V square plus u square by 2, the root under. If a bullet loses 1 by nth of its velocity while passing through a plank, the minimum number of such planks required to just stop the bullet. That means let हमारे पास एक plank है और this is a plank और wood भी लिखा होगा wood plank, so that is x. मान के चलो और एक plank है nearby x, ठीक है. इस तरह there are so many planks रखे हुए हैं जिसका length x है. I don't know कि और there are so many planks. Okay, we don't know exactly after moving how much distance the bullet is going to stop. The student bullet जो है वो plank को u velocity में enter कर रहा है, getting, और जब ये यहाँ से निकल रहा है तो कितना velocity उसका loss हो रहा है? 1 by nth. 1 by nth velocity मतलब losing. That means u by n velocity it's losing. So after losing, what is the velocity going to be? U minus u by n, correct? u minus u by n. निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितना हो गया होगा? u minus u by n, करेक्ट? yes or no? स्टूडेंट्स, Yes, sir. मान के चलो वो n प्लैंक मूव करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स ये x डिस्टेंस मूव करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. let the number of let चलो m ले लेते हैं क्योंकि n दिया हुआ है. let m be the number of planks. Let m be the number of planks. Let m be the number of planks required to stop the bullet. To stop the bullet. तो मतलब
अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन डालूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर मैं पुट करूं, इफ आई विल बी पुटिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देन क्या होगा? मतलब एक प्लैंक के लिए चलो देख लेते हैं, फिर इसको m प्लैंक के लिए बना देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो? दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज u माइनस u by n v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into x, है कि नहीं? अंडरस्टूड? फ्रेंड स्टॉप हो जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। मानो कि m प्लैंक मूव करने के बाद वेलोसिटी स्टॉप हो जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग 0। सो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2 एक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड लेट द डिस्टेंस इज विल बी mx, क्योंकि एक प्लैंक जाने के बाद ये इक्वेशन है, अगर m प्लैंक जाने के बाद रुक जाता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? mx हो जाएगा ना। सो दिस इज इक्वेशन 2, करेक्ट? सो लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. सो डिवाइड इक्वेशन 2 with equation 1, with equation 1, then कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देख, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय u माइनस u by n का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2amx डिवाइडेड बाय 2ax। तो सारे कैंसिल आउट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा? m इज इक्वल टू, यू विल बी गेटिंग m इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस u by n का होल स्क्वायर। दैट इज, अगर u में कॉमन ले लूं तो इट विल बी लाइक 1 by 1 माइनस 1 by n। अगर मैं u कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे u कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली m इज गोइंग टू बी हाउ मच? अगर मैं इसको सॉल्व करूं फिर, सो ये n स्क्वायर हो जाएगा LCM, ठीक है, ऊपर वो चला जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर अगर n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद हमें m कितना मिल जाएगा? दैट इज n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, ठीक है। m इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, ठीक है। अगर कितना वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ उतना ही, क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन होगा, तो दिस n, ओनली दिस n, कितना वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? 1/3 या 1/4 या 1/5, वो n की जगह में 5 डाल दो, ठीक है। 5 स्क्वायर बाय 2 into 5 minus 1, that will give how many number of planks required to for the bullet to stop and the final velocity to become 0. The velocity of a bullet, the velocity of a bullet becomes 1 by n। अभी लूसेस 1 by n था ना, अभी दे दिया कि becomes मतलब 1 by n हो जा रहा है। अगर u में था तो u by n हो जा रहा है, ठीक है। 1 by n of the initial velocity, 1 by n of the initial velocity while penetrating a plank, while penetrating a plank. The number of such planks required, the number of such planks required, the number of such planks required to stop the bullet, the number of such planks required to stop the bullet. इसका ये मतलब है स्टूडेंट, वही प्लैंक वाला डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पर जब था वेलोसिटी तो u था, जब यहाँ से निकल जा रहा है तो x डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? u by n। लूसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इस तरह कितने प्लैंक्स जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। दैट मींस u by n का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। लिख सकते हैं ना, एक के लिए लिख सकते हैं कि नहीं? वहां पर क्या लिख रहे थे? u माइनस Yes, u sir. by n लिख रहे थे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? u by n। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। फार्मूला बता दिए, मेमोराइज कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर उस पे देखे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मान के चलो m प्लैंक के बाद रुक जा रहा है तो 2amx लिख देंगे, करेक्ट। तो अभी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें जो मिला a, उसको लेके इक्वेशन 2 में डालो, तो बाय सॉल्विंग यू विल गेट m इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। समझ पा रहा ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये भी एक फॉर्मूला है जब 1 by n दिया होगा। स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत टाइप के क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और भी एक क्वेश्चन बना सकता है, जिसमें आपको बता रहा हूँ। मानो कि उसने दे दिया कि बुलेट लॉसेस 1 by n ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग ए डिस्टेंस x इनटू द टारगेट, ठीक है। एक प्लैंक जाने के बाद 1 by n ये कर रहा है।
तो वो बोलेगा कि फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? फर्दर वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। तो वहां पर क्या करेंगे? हाँ, पहले तो आपने एक इक्वेशन बना दी है, u माइनस यू बाई एन का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ऐसा किया था ना पिछले वाले केस पे, यहाँ पर ऐसा किया था ना, ये वाला इक्वेशन। वो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस Yes, sir. फर्दर ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन था। लेकिन दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू, मान के चलो वो y डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाएगा, x प्लस वाई कर दिए। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, आप इंडिविजुअली उसको ट्रीट करके टोटल a निकाल सकते हो या फिर m निकाल सकते हो, फिर इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो जितना प्लैंक्स है उससे x सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद आप देखोगे कि y जो है ना वो सॉल्व करके, मैं ऑप्शन डायरेक्ट दे रहा हूँ, वो ऑप्शन दिया था y कितना होगा नेक्स्ट, तो वो इस तरह आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बाय 2n। ऐसे भी आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे mx माइनस x कर दोगे एक प्लैंक जाने के बाद। ठीक है, वो दे दिया होगा क्वेश्चन में, ये पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस एक x डिस्टेंस जाने के बाद हो रहा है, कितना और डिस्टेंस जाने के बाद वो रुक जाएगा। तो दैट मींस इस तरह हो जाएगा, कितना लूज कर रहा है वेलोसिटी। m नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हमने सॉल्व कर दिया इस तरह। यहाँ पर हम m की हेल्प नहीं लिए ना, टोटल इक्वेशन पे लिए क्या, दोनों इक्वेशन पे m की हेल्प नहीं लिए ना। मतलब 1/n लूज करने के बाद जितना हाँ, डिस्टेंस उसने दे कवर दिया होगा। कि वो x डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पर जा रहा था u वेलोसिटी में, अभी x डिस्टेंस चला गया और चल जाने के बाद उसका वेलोसिटी इतना लूज हुआ u बाई u-1। तो बाकी कितना डिस्टेंस जाने के बाद वो सिर्फ पूछा होगा, वही प्लैंक वाला क्वेश्चन। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा, तो मान के चलो ये डिस्टेंस y जाने के बाद 0 होगा। तो पहला इक्वेशन तो हम लिख दिए 2ax, सॉरी 2ax लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, 2ax, क्योंकि पहला इक्वेशन फर्स्ट u में गया, x प्लस जाने के बाद 1/n लूज कर दिया, तो बचा कितना u माइनस यू बाई एन, उसके लिए डाल दिया हम एक इक्वेशन। दूसरे पे क्या कर रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ, टोटल यहाँ पर 0 हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया x प्लस वाई। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से y आ जाएगा। वो 4 ऑप्शन दिया होगा, व्हिच वन इज करेक्ट, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए। अंडरस्टूड? इसी क्वेश्चन पे ये भी हो सकता है ना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे क्या था, 1/n वेलोसिटी लूज कर रहा है, लेकिन वो दे सकता है ना कि 1/n वेलोसिटी बन जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है ना। मतलब ऐसे जा रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी u था, जैसे हम अप्लाई किए, यहाँ पर वेलोसिटी u/n बन जा रहा है, x जाने के बाद लूज नहीं कर रहा है, बाकी कितने जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ठीक इस तरह अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ये एक पहला इक्वेशन था, इसका दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस u/n का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब फर्दर कितना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, देन इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, लेट फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं ना, 0 माइनस u/n, यहाँ पर वेलोसिटी u/n, हम तो u से नहीं लिए ना, फिर हम क्या किए, इसको ले लिए इनिशियल, इसका फाइनल बन गया 0, तो 0 माइनस u/n स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो दोनों को सॉल्व करो, वहां पर ऑप्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू x बाय n स्क्वायर माइनस 1। 10th स्टैंडर्ड की लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता है प्लैंक के रिगार्डिंग, चारों टाइप के मैंने बता दिया। डिस्टेंस पूछ सकता है, वेलोसिटी लूज कर सकता है, या वेलोसिटी बन सकता है। केयरफुली आपको क्वेश्चन को रीड करना है और ठीक उस तरह प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो सो फॉर सो गुड, डायरेक्टली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर नहीं रहा फिर आप वहां पर ट्राई कर सकते हो। गॉट इट? समझ लिए स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Go to the next. Yes, sir. A car accelerates from rest and moves at a rate of 1 meter per second square from 5 seconds, then retards at the same rate till it comes to rest. Draw the xt, vt and at graph. एक ग्राफ समझेंगे, मतलब ये क्वेश्चन भी हमें ये क्लैरिफाई करवा देगा कि अगर एटी ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से कैसे बीटी ग्राफ बनेगा, कैसे एक्सटी ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, कोई भी एक वेलोसिटी दिया होगा, इसका हायर वर्जन है, मतलब क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन है 11th पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप लोग पढ़ रहे होंगे, बट अभी फॉर 10th एंड डीएससी whether he is having the idea of AT-VT, converting of AT-VT and XT graph is not that he wants to know. Car accelerates from rest, students. अगर मैं यहाँ पर एक मैं XT ग्राफ बनाना है पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, ये x है वेलोसिटी, ये है टाइम। स्टूडेंट 5 सेकंड के बाद कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मतलब u is equal to 0, correct? A is equal to how much? 1 meter per second square, correct? T is equal to how much? 5 second, है कि नहीं? ना students? Yes, 5 second. yes, sir. Then क्या होता है? Then retards होता Yes. है the same rate till it comes to rest. That means अगर हम यहाँ पर डालें v is equal to u plus at, तो velocity कितना हो जा रहा है सेकंड के बाद? v is equal to how much? 0 plus 1 into 5. 5. That is 5 meter per 5. second. ये हो गया एक पार्ट, पहला पार्ट क्वेश्चन का. अभी टाइम कितना टाइम लग रहा है उसको रेस्ट पे आने के लिए? Then it retards the same rate, मतलब acceleration is same but it comes to rest. Comes to 5 rest second. मतलब v कितना time taken to come to rest, right? Time taken to come to rest, that is equal to how much? 0 minus 5 by minus 1. क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना, तो कितना हो गया? 5 सेकंड, करेक्ट? That means कार स्टार्ट होता है t is equal to 0 से, हमने ले लिया यहाँ पर 0 पे 0. और कितने तक एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे होता है स्टूडेंट्स? s is equal to ut plus rpt स्क्वायर ना, तो थोड़ी ना ये लिनियरली वेरी करेगा. फ्रेंड्स दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे बताओ इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या चेंज है, पता है आपको? इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग. स्लोप पॉइंट से tan थीटा अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने से इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, थीटा इज इंक्रीजिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर देखेंगे, पहले इस पॉइंट पे था, दिस वाज थीटा, अभी इस पॉइंट पे स्लोप इज डिक्रीजिंग. दैट मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग. दिस इज द केस फॉर डिक्रीजिंग एंड दिस इज द केस फॉर इंक्रीजिंग. तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मींस द एक्सेलरेशन इज इंक्रीज, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, करेक्ट? अंडरस्टूड? अप टू कितने सेकंड तक ये जाएगा? 5 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है, करेक्ट? फिर वहां से क्या कर रहा है? डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब डी एक्सेलरेट मतलब इट विल बी लाइक दिस. गेटिंग माय पॉइंट ना? यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 क्योंकि रिटार्ड हो रहा है. और ये कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक. तो थ्योरी से पता चल गया कि एक्सटी ग्राफ कैसे होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी हम इस एचटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाने वाले हैं. वीटी ग्राफ तो आराम से बन जाएगा. जस्ट सी, मैंने वेलोसिटी लिया यहाँ पर, मैंने टाइम लिया, ठीक है? आई जस्ट टुक वेलोसिटी, आई जस्ट टुक टाइम हियर. 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया था? 5 ना, 5 मीटर पर सेकंड में v is equal to u plus at, है ना? पहले 0 0 पे था वेलोसिटी, फिर कैसे हो जाएगा ये? इट विल बी लाइक दिस. ये टाइम 5 सेकंड है और यहाँ पर वेलोसिटी कितना बन गया? 5 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड यहाँ पर टाइम इन सेकंड, करेक्ट? फिर वहां से क्या हो रहा है? नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या हो रहा है? वो वेलोसिटी डिक्रीजिंग. v is equal to u plus at, लीनियर है. स्क्वायर पर कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, तो इससे लीनियर वेरिएशन. तो ये 10 तक आ जा रहा है. गॉट इट? समझ में आ गया ना स्टूडेंट? 10 सेकंड में फिर आके 0 पे पहुंच रहा है, कम्स टू रेस्ट. वीटी ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहीं से एटी ग्राफ बनाने हैं हमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. चलो पहले एक्सेलरेशन टाइम दे दो और टाइम को ले लो, ठीक ठीक है? वो एक ही लाइन पे अगर दिया होगा तो ये t है, t इज इक्वल टू 5. फिर अगर इसको देखेंगे तो t इज इक्वल टू 10. t इज इक्वल टू यहाँ पर 5 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड. फ्रेंड्स सी हियर, तो वेल एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? तो ये 0 है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने तक जाता है? 5 सेकंड तक जाता है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे. Yes, sir. Sir, then negative -1 meter per -1 second. में. तो यहाँ पर Yes, एक, sir. अब मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? आप इस साइड पे -1 ले लो, नीचे पे -1, तो ये नीचे पे -1 पे फिर एक लाइन ड्रा कर देना, ठीक है? सो दैट मींस अगर यहाँ पर और एक ट्री ड्रा करूँ तो इट विल बी 1. इसको 1 ले लो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और यहाँ पर भी ठीक ले लो, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 5 ले लो, 10 ले लो, ठीक है? यहाँ तक ले लिए, फिर ये वाला ले लिए. एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो कि अगर थोड़ा क्लियर नहीं होगे, अगर पहले से याद नहीं होगा तो वहां पर कंफ्यूज करवाएगा आपको एग्जाम पे. क्योंकि एग्जाम पे क्या है कि दिमाग एक तरह से काम नहीं करता है. क्वेश्चंस होते हैं बहुत, 100 क्वेश्चंस. टाइम क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, जो अच्छा अच्छा इजी इजी कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े होंगे वही आपको फिर भी वहां पर कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है? जस्ट सी इट, सी हियर. A ball is thrown vertically upward, ठीक है? With a speed of 9.8 meter per second from the ground.
draw the extremity on the AT graph. Students, acceleration of the ball remains कितना? Acceleration due to gravity. 9.8. Throughout the motion acceleration कितना रहता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट? सर ऊपर थ्रो कर माइनस होगा. हाँ, वही जब हम बनाएंगे यहाँ पर, लेट्स मेक द सी हियर. अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी और स्टूडेंट क्या है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आर बी स्क्वायर, यानी तो फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस. ठीक है, कुछ भी अगर हम डालेंगे तो कितने वेलोसिटी में मैं उसको फेंक रहा हूँ स्टूडेंट्स? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, टाइम टेकन, टाइम ऑफ ascent कितना है? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, u by g ना, दैट इज 9.8 by 9.8. कितना लगेगा? 1 सेकंड लगेगा ना उसको ऊपर जाने के लिए. पता है कि नहीं? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब एक बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो यहाँ पर जो पहुंचता है, जितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ascent. फिर वहां से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. एंड इन वर्टिकल मोशन टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u by g. करेक्ट? पहले हमने क्या किए, उसको 9.8 वेलोसिटी में थ्रो किए, ये कि नहीं है ना? जब 9.8 वेलोसिटी में थ्रो किए तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है ना? 0. Yes. वेलोसिटी विल डिक्रीज अप टू 1 सेकंड, करेक्ट है ना? फिर यस नेक्स्ट मतलब 2 सेकंड में, इन द नेक्स्ट 2 सेकंड, मान के चलो ये वाला डिस्टेंस स्टडी 2 सेकंड ले लो इसको, दिस इज 2 सेकंड. ठीक है, 2 सेकंड पे ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा? वही -9.8. जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा था, अगर हम +9.8 लिए थे, तो अभी नीचे की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो क्या है? अगर मैंने इसको u वेलोसिटी में फेंका ना, तो ये आने के लिए भी u वेलोसिटी लगेगा उसको. ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g ना, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, है कि नहीं? यस सर. तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज आल्सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, करेक्ट? मैंने एक बॉडी को यहाँ से थ्रो किया u से, तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा? h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g है ना, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g. तो यहाँ से निकाल देंगे हम h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g. और जब यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है या फिर उतने हाइट से, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड कितना होता है? v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh. और यहाँ पर वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ प्लस था तो नीचे की तरफ क्या होगा? वेलोसिटी माइनस होगा ना? यस Got it? ये एक चीज हुआ. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम AT ग्राफ बनाएंगे, we'll make AT graph. So throughout the motion, acceleration of the ball remain constant ना, that is -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, against gravity जा रहा है. Getting? ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, acceleration is constant. तो अगर हम acceleration और time का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो इसको अगर 0 ले लिए तो against जा रहा है, तो -9.8, it would be like this. स्टूडेंट्स, टाइम टेकन जो है स्टूडेंट्स, जब एक केस होता है क्या, वो एक्सेलरेट करते करते जाता है. पहले वो क्या होता था, पहले जो यहाँ से मैंने फेंका उसको u स्पीड में, क्या होता है? डी एक्सेलरेशन होता है ना, दैट मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, करेक्ट, एंड इट इज लेस देन 0. यस सर, नो? Yes, sir. और यहाँ पर Yes, वेलोसिटी 0 बन जा रहा है. दैट मींस अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो h इज इक्वल टू क्या होगा? h इज इक्वल टू मैंने क्या बताया, u स्क्वायर बाय 2g ना, दैट इज 9.8 into 9.8 by 2 into 9.8, तो कितना हो जाएगा? 4.9 मीटर ना, ठीक है नहीं? Yes, sir. क्या h जो है, क्या वो u के साथ, क्या वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है? स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है ना, और वो डिक्रीज होते होते जा रहा है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है नहीं स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इसका Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाऊं, बता सकते हैं. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाऊं तो 0 से शुरू होता है और 4.9 तक जाता है. और कैसे जाता है? डिक्रीजिंग में जाता है ना. तो ये 4.9 मीटर तक गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैंने बनाया, एक्सटी ग्राफ अगर मैंने बनाया, 4.9 तक जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर वो इस तरह आ जाता है. नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होता है? दिस इज 1 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड. एंड स्टूडेंट, जब a लेस देन 0 है, दैट इज एक्सटी ग्राफ इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. The x coordinate of the ball is 0 initially, and finally when it reaches the back after 2 seconds, then भी 0 है x coordinate. तो इसलिए वो जा रहा है 4.9, फिर 4.9 आ रहा है, इसलिए linearly, not linearly, स्क्वायर के हिसाब से.
तो वेलोसिटी एट द टॉप कितना है 0, तो स्लोप यहाँ पर कितना हो गया 0 at x is equal to t। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, ये जो सैडेड एरिया हमने दिखाया है, ठीक है नहीं, and area will give what in the above t axis, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ स्टूडेंट, एक्सटी मतलब वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ सकता है, या नहीं तो फिर क्या पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा ना, Yes, sir. तो वहां पर डिस्टेंस टाइम ही वो ग्राफ दिखाने के लिए बोला है, अंडरस्टूड। सर एक्सटी ग्राफ